So, hello everyone, welcome back again. Uh, Today, आज हम जो करने वाले हैं कि हम प्रीवियसली जो मैथ्स ओलंपियाड का सो कॉल्ड पेपर सॉल्व कर रहे थे उसका ही एक क्वेश्चन जो मेरे को लगा कि हाँ मतलब of course, the question is very easy as compared to how the usual IOQM 3 markers are, but that is not the point. The point is that these functional equations, J Advanced asks this thing. However, it is not officially included in the syllabus, and of course, it's not something like okay out of syllabus. It's just functional equation. It's more like how you approach the question, right? So that's the thing. It's not like something crazy on something absolutely mind blowing. Of course there are some questions which you feel that they're mind blowing, but again they can be solved using these fundamentals. तो आज हम वैसा ही एक मोर लाइक दिस क्वेश्चन विच हैव टेकन फ्रॉम वो IOQM 2025 का पेपर से, मतलब इसी साल का पेपर से. सो आई थिंक सेट 4 का 13th नंबर क्वेश्चन. सो of course, I'll just show the question and then please give this question a genuine try before moving on to this video, right? So let me just show the question. Just try, and of course, if you just give it one or two genuine tries, you would be easily able to solve, right? Why? Because don't go for formulas and don't go on looking the solutions, right? When I'm telling try for yourself, right? So let's head into it. तो देख लो, यही क्वेश्चन है कि फंक्शन एफ इज डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ इंटीजर्स फॉर एनी टू इंटीजर्स m and n, sorry, for any two integers m and n, we have f of mn plus 1 equal to f of m into f of n minus f of n and minus m plus 2. And also we have been given that f of 0 is equal to 1, and we have to find the largest possible number integer n for which this relation holds true. So आई होप यू हैव फर्स्ट प्लीज पॉज द वीडियो और उसके बाद ट्राई कर लो, उसके बाद ही वीडियो का सोल्यूशन देखो, वरना फिर क्या ही मतलब भाई. ठीक है. तो of course, so now of course it won't be a very long video because the problem itself is a bit easier on the easier side. So without wasting any further time in informal talks, let's just get right into it, right? So now how to exactly think, right? तो हमको दिया क्या गया है कि एक फंक्शन एफ है. ठीक है. फंक्शन एफ मतलब एम और एन का कुछ वैल्यू अगर हम पुट कर दें इधर, तो हमको एक कुछ और वैल्यू मिल जाएगा. मतलब इट्स काइंड ऑफ लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. रिलेट विद थिंग्स विद व्हाट यू ऑलरेडी नो. तुमको तुमको मतलब जनरली आता है क्या कि हाँ फंक्शन के नाम पे तुमको क्वाड्रेटिक फंक्शन आता है या फिर कुछ क्यूबिक वगैरह अगर तुम थोड़ा पढ़े हो तो. बट ठीक है, मतलब क्या होता है कि तुम वैल्यू डालते हो और बस हो जाता है बाकी काम, वो वैल्यू रिटर्न कर देता है. बट इधर दो वेरिएबल्स है, तो now a modern integers, maybe we can use this fact in some of the questions, or some fact, some constraint. And हमको दिया क्या गया है, हमको दिया गया है कि ऑफ कोर्स ये रिलेशन तो दिया गया है, और एक क्या दिया गया कि f of 0 equal to 1. So now when I'm looking at this question, or especially at J level, if you have not solved this kind, if you have not encountered, or maybe it was, what can I say, it's not entering your head what to do, just think that what you have been given. So you have been given that f of 0 equal to 1. So the very next thought which will come into your mind, that probably if I somehow create this f of 0 term in this equation, then maybe I can get some bit of extra information. Because see, तुमको पता है क्या कि तुमको पता है कि f of 0 1 है, तो तुम अभी कोशिश क्या करोगे, तुम कोशिश करोगे कि हाँ कुछ f of कुछ और भी, मतलब व्हाट कैन आई से, एफ ऑफ लेट्स से कुछ के, लेट्स से एफ ऑफ के जो वैल्यू होगा वो भी एफ ऑफ 0 का फॉर्म में आ जाएगा और तुमको आंसर मिल जाएगा. लेट्स से एफ ऑफ 0 प्लस सम अनदर कांस्टेंट. सो तुमको आंसर मिल जाएगा, राइट? सो तुमको भी पता है कि हाँ ठीक है, मतलब एफ ऑफ 0 का यूज करना है. सो हाउ एग्जैक्टली कैन यू यूज दिस इन फैक्ट, राइट? एफ ऑफ 0 को हम यूज कैसे करें? So one method is of course, see, f of 0, if we are trying to create f of 0, so let's say देखो एफ ऑफ 0 कैसे आएगा. एक तो हो सकता है कि m इंटू एन माइनस वन दे दे, बट देखो m इंटू एन इंटीजर्स है. m इंटू एन अगर माइनस वन दे देंगे तो हमको m और n का कितना केसेस लेना पड़ेगा. देखो पहले वन माइनस वन वन, ओके, सो दो केसेस ऐसे लेना पड़ेगा.
तो पहले तुमको m को 1 डालना पड़ेगा, उसके बाद साइमल्टेनियसली n को -1 डालना पड़ेगा। तो देखो क्या आ जाएगा भाई, इधर तो आ गया एफ ऑफ जीरो, फाइन, इधर आ गया एफ ऑफ जीरो, उसके बाद एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ वन आ जाएगा, एफ ऑफ वन इंटू एफ ऑफ -1 आ जाएगा भाई। देखो एफ ऑफ -1 माइनस एफ ऑफ -1, राइट, प्लस माइनस -1 +2। अब देखो कि क्या हो गया भाई, वेरिएबल्स तो और बढ़ गया भाई। नाउ प्रीवियसली यू वेर ओनली एम एन एंड ऑल दोस, नाउ यू डोंट नो f1, you don't know f-1, and again it's just no use because again there are two unknowns, right? So how can you use this? So of course, and if you do -1 and 1 also you will get similar kind of situation. So of course, तुमको तो अभी तक पता चल गया होगा कि हाँ ठीक है कि जीरो अगर पहले वाला जो है एल एच एस में सो कॉल बना है तो फिर कोई काम नहीं बनेगा, राइट। अब तुम्हारा ध्यान जाता है कि आर एच एस पे। तो आर एच एस पे देखो कि लेट्स से आर एच एस में तुम एफ ऑफ जीरो बनाने के लिए क्या कर सकते हो, आइदर एम को जीरो डाल देते हो या फिर एन को जीरो डाल देते हो, राइट। लेट्स से तुम पहले कोई भी ले लो, लेट्स से एन को जीरो डाल दिया, ठीक है, एन को जीरो डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ वन, क्योंकि एम इंटू एन तो जीरो हो जाएगा। एफ ऑफ वन इक्वल टू सी, जो भी वैल्यू होगा एफ ऑफ एम, लेट्स से एफ ऑफ एम जो है, ठीक है, एफ ऑफ एम, फाइन, एफ ऑफ एम, एफ ऑफ जीरो, एफ एन को हम जीरो लिए हैं, ठीक है, ये केस भी हम देखेंगे, राइट। सो एफ ऑफ एन कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एन वन हो जाएगा, राइट। सो ओनली वन इटसेल्फ, एंड अगेन एफ ऑफ एन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो मतलब वन, -1, -1 -m +2। द मोमेंट यू राइट दिस, अब तुमको क्या चमकेगा, मतलब नाउ व्हाट थिंग वुड यू, व्हाट वुड द नेक्स्ट ऑब्वियस थिंग दैट वुड एंटर योर माइंड इज दैट ओके, आई वाज you know where I went out to find the value of f of 1, or let's say f of something, so that I can use this value of f of 0. However, अब हो क्या गया है कि ना तुमको एफ ऑफ वन का वैल्यू पता है और ना तुमको एम का वैल्यू पता है, राइट। तो ठीक है, मतलब n equal to 0 is not, of course, much more beneficial than putting m and n equal to -1, but of course it's also simultaneously it's also not a very good technique। तो ये भी उतना अच्छा मेथड नहीं है कि हाँ ठीक है n को 0 डाल दो, राइट। और ऑल्सो क्योंकि एक फ्लॉ जो, मतलब फ्लॉ इन द सेंस दैट, एंड थिंग इज दैट कि इधर और एक कांस्टेंट रह जा रहा है, एम रह जा रहा है, बिकॉज हमने एन को तो अभी डिफाइन ही नहीं किया, मतलब एम तो कुछ भी हो सकता है इधर। सो राइट, सो वन फ्लॉ इज देयर। तो अभी तुम्हारा थॉट जाएगा कि ठीक है ये सब नहीं हुआ, सो द वेरी नेक्स्ट थिंग दैट शुड एंटर योर माइंड कि ठीक है एम को 0 डाल देते हैं, उसके अलावा कुछ, दैट इज द ओनली पॉसिबल choice you have। Might be that you at the first try you put m equal to 0, but that's basically what goes on your entire head। So now when you put m equal to 0, just see what will happen। So of course देखो फिर से तुम्हारे पास f of 1 आ जाएगा, सॉरी, so f of 1 आ जाएगा, f of 1 इक्वल टू f of n कितना, f of 0 मतलब f of n, फिर से ओनली f of n, राइट। और yeah, so m equal to 0, f of n minus f of n, can you see, f of n minus f of n मतलब f of n कट जाएगा, it's just kind of magic you can say, but still minus m, so m you have taken 0, so just minus m means 0 itself, so I'm not writing that, and you will get just +2। देखो f of n कट गया, it's, can you see that now, yeah fine, f of 1 is equal to 2 आ गया, fine। So now you know f of 0 as well, and you now know f of 1 as well। So now previously I rubbed that part, but previously you created that f of what can I say, f of n term। So basically what I mean is that previously you created that whole thing, that okay, m, basically now you what you sorry for fumbling, but तुमको पता क्या चला कि हाँ ठीक है, m इक्वल टू 0 डाल के तो हमको एक मतलब f of 1 का एक रिलेशन मिल गया। नाउ सी, अब तुमको m में ही ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि तुमको दिख रहा है कि हाँ m में एक ज्यादा प्रेफरेंस है कि हाँ ये भी एक कांस्टेंट टर्म है, अगर इसको हम डिफाइन कर दे तो शायद हमारा वेरिएबल्स जो है थोड़ा कम हो जाए, स्पेशली इसके बाद जो फंक्शन कट गया उसके बाद तो तुमको मजा ही आ गया होगा, राइट।
सो अगेन हमको अभी एफ ऑफ वन पता चल गया. तो अगेन इंस्टेड ऑफ यू विल अगेन ट्राई टू क्रिएट एफ ऑफ वन. So instead of trying to put mn equal to 0 or n equal to 1, so very the next obvious step which you will do is that ठीक है, सब हुआ fine, it's all fine. Let's just put m equal to 1 also. Why put 1? Because you need to use this information also, because you don't need this. You need a general function, you need this f of k where k is any general function, right? तो तुम ये करोगे कि हाँ, और m में क्यों करोगे, why not m n n and n? दैट्स द रीजन कि हाँ, अब m में डाल के दिख रहा है कि हाँ एक एडवांटेज भी है कि ये माइनस m वाला टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट? सो अब पुट करके देखो क्या होगा, राइट? सो ये आ गया एफ ऑफ n प्लस वन. कैन यू सी दैट एफ ऑफ n m वन हो गया, तो एफ ऑफ n प्लस वन, एफ ऑफ n प्लस वन इक्वल टू एफ ऑफ m कितना, एफ ऑफ कितना हो गया, एफ ऑफ m मतलब एफ ऑफ वन, सो टू एफ एन हो गया, टू एफ ऑफ एन. और कैन यू सी टू ऑफ एफ ऑफ एन एंड माइनस एफ ऑफ एन. So can you see there is a relation between f of n and f of n, f of n plus 1 and f of n. That means हमको क्या मिल गया कि हाँ, एक नंबर f of, ऐसे समझ लो कि f of कुछ नंबर है उसका मतलब तुमको जनरलाइज फंक्शन मिल गया, राइट? So and also you just put the value of minus m plus 1. So that means minus m plus 2, sorry. So that means you will get plus 1. So basically तुमको जो फंक्शन मिला वो है f of n plus 1 minus f of n minus f of n is equal to 1. Can you see it's kind of like AP कि हाँ कि अगर हम दो, of course it's a very similar AP which I will tell that what it is. But can you see अगर तुम अगर कोई भी nth टर्म और n plus 1th टर्म उठा लो और उसका डिफरेंस उसका प्रीवियस टर्म या फिर उसके पहले वाला टर्म से करवा लो, तो डिफरेंस एक कांस्टेंट आ रहा है, तो कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है. सो एपी ऑफ कोर्स दिस एपी थिंग, और मे बी नॉट एपी, लेट्स से एफ ऑफ जीरो. एफ ऑफ जीरो में क्या आ जाएगा भाई, एफ ऑफ जीरो जैसे एफ ऑफ जीरो क्या आ गया, एफ ऑफ जीरो कहाँ क्या आ गया, हाँ एफ ऑफ जीरो वन. सो पुट एन इक्वल टू जीरो. सो एफ ऑफ वन इज हाउ मच, एफ ऑफ वन इज sorry, f of 1 is 2, yeah, f of 1 is 2. So oh okay, we did this also. So f of 2 क्या आ जाएगा, f of 1 plus 1, so that means f of 2 2 3 आ जाएगा. Can you see all the way up to, let's say if you want f of k, then it would just be k plus 1, right? So that's the thing. So now it's become really easy. Now what we have been given, to find the value of this. Can you see really how easy it was? So now please don't get confused with this all sigma and all those stuff, right? What basically you have been given is that, let's say you have been given f of k. So basically you need to you need to find the summation of f of k plus 1, where of course k belongs to what, 1 to n, and that whole sum is less than 100, right? So can you realize that ये लिखा क्या है, लिखा है k को 1 पुट कर दो, देखो 2, उसके बाद वाला टर्म 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 ऑल द वे टू सम, लेट्स से सम n नंबर जिसका सम लेस देन 100 होगा, राइट? So can you see it's literally just summation of AP, right? So अब लगा लो फॉर्मूला कि यू नो 100 लेस देन बोला है ना, लेस देन इक्वल टू ना, हाँ ठीक है, 100 ये जो टर्म है एपी का टर्म क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, राइट? सो ए इधर क्या है, ए है 2 प्लस एन माइनस वन, एन तो निकालना है ना, देखो 2 2 प्लस एन माइनस वन डी. सो देखो एन माइनस वन डी तो 1 हो गया, तो 2 प्लस एन माइनस वन, राइट? सो 1 प्लस एन, कैन यू सी 1 प्लस एन, 1 प्लस एन into n by 2. So basically just summation of AP, right? So अगर तुमको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो एक काम कर सकते हैं कि ओके हाँ, तुमको 1 से n तक तो सम पता है ना कि हाँ ठीक है, 1 से n तक सम n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है, राइट? सो बेसिकली सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. सो ठीक है, इधर फर्स्ट n नहीं लिखा हुआ है, इधर 1 ऐड कर देंगे तो क्या बुरी बात हो गया, 1 ऐड कर देंगे तो 1 माइनस भी कर देंगे ना, तो फिर इतना क्या हो जाएगा, लेट्स से n टर्म्स तक लिखा है तुमने, तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू, n इंटू एन प्लस वन बाई टू माइनस वन इज लेस देन 100. अब कर लो, अगर करना है तो क्वाड्रेटिक कर लो,
या फिर ठीक है क्वाड्रेटिक ही कर लो ना, क्या 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 प्रॉब्लम है, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि हो जाएगा अब तो। देखो कितना आ जाएगा, एन एन स्क्वायर, मैं कर देता हूँ एन स्क्वायर प्लस एन -2 लेस देन 200, और लेट्स से 200, 200, हाँ ठीक है, लेस देन 200 ये आ गया। सो लेस देन 200 आ गया, तो क्या होगा? आ, हाँ तो इससे आ जाएगा शायद, तो कर लो, एक सेकंड में बस करके बता देता हूँ। तो मैंने जो इनइक्वालिटी बोला उसको अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा। अब ये तुमको चेक करना है कि हाँ ठीक है, इसको अब देखो, ये एन तो इंटीजर है ना, एन तो इंटीजर है, तो इंटीजर बैठा के देख लो। तुम कुछ लोग सोचेंगे कि हाँ क्वाड्रेटिक वगैरह करेंगे, भाई क्वाड्रेटिक का रूट तुमको दिख रहा है कि क्या होगा? बहुत मतलब आई मीन इरेशनल हो जाएगा ना, राइट? आई होप सो कि 202 को शायद फैक्टर नहीं किया जा सकता, तो बैठा के देख लो भाई, क्या है एन इक्वल टू 10, बैठा के देख लो। 10 क्यों? क्योंकि सम राउंड ऑफ इंटीजर टाइप आ जाएगा अच्छा सा। तो 10 बैठा लो, 10 से क्या होगा? 10 से लेट्स से 10 इंटू 11, 10 इंटू 11 110, 110 कितना हुआ? 102, 202 से तो लेस नहीं है, तो लेट्स से 13 14 बैठा दो। 13 इंटू 14 कितना होता है? 13, 13 इंटू 13 169, 169 प्लस और 13 मतलब कितना हो जाएगा? 182, 182 आ जाएगा। 13 अगर इनको तुम 13 लोगे तो 182 आ जाएगा, ठीक है 182। सो फिर ये ठीक है, तो फाइन, इनको 15 ले लो, या फिर पहले 14 भी ले लेते हैं, ठीक है फिर 14 ले लेते हैं, 14 इंटू 15, 14 इंटू 15 तो आसानी से कर दोगे, कितना हो जाएगा? इधर उतना 15 20, 210, अच्छा ठीक है 210 आ गया, राइट। सो 14 इंटू 15 210 आ गया, मतलब एन अप टू 13 इसका वैल्यू ही एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ऑफ कोर्स एन इंटीजर होना चाहिए, तो इधर हमने यूज कर लिया ये फैक्ट कि हाँ ये इंटीजर है, राइट, एम और एन, राइट। ऑफ कोर्स इधर भी हमने यूज किया था, ठीक है, तो नो इश्यूज देयर। तो इधर से हमको पता चल गया कि हाँ 14 तो नहीं हो सकता, 14 आएगा तो 202 से बड़ा हो रहा है, सो ज्यादा हो रहा है, सो नहीं होगा। तो मतलब 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 कितना तक लेंगे? 13, 13 अप टू 13 लेंगे, ताकि हाँ ठीक है सम लेस देन 100 आ जाए। तो अभी हमको पूछा क्या गया है कि डिटरमाइन द लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर एन, राइट। सो हमको मतलब बेसिकली द नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, काइंड ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। सो मतलब कहाँ से कहाँ तक जाएगा? टू लेट्स से वन से एफ ऑफ कितना तक जाएगा? सो एफ ऑफ वन से तुम्हारा एफ ऑफ एन तक जाएगा, मतलब बेसिकली द नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, राइट। तो नंबर ऑफ टर्म्स इधर कितना हो जाएगा? देखो गलती से 13 मत बोल देना, 13 मैंने भी जब पहले बार किया था तो 13 मैंने मिस्टेकनली बोल दिया था, बट 13 मत बोल देना, क्योंकि देखो 1 से अगर 13 तक होगा तब 13, 13 टोटल टर्म्स होंगे, ठीक है। तो 1 तो हमने हटा दिया ना, 1 तो था ही नहीं, राइट। सो टोटल टर्म्स 13 माइनस 1 12 हो जाएगा। सो वही हमारा आंसर हो जाएगा कैपिटल एन का, क्योंकि वही तो पूछा है ना, वही पूछा है। देखो कि कैपिटल एन क्या होगा? लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, टोटल एन तक मैक्सिमम कितना तक ले जाना पड़ेगा कि हाँ लेस देन 100 है, क्योंकि उसके ऊपर अगर जाएंगे तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, राइट। सो अप टू 13th टर्म हम लेके जाएंगे, 13th टर्म नहीं, अप टू 13 ले जाएंगे, बट इस सीरीज में हमारे पास जो है 2 प्लस 3 प्लस 4, इसमें तो 1 इंक्लूडेड ही नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना ले जाएंगे? 12, 2 से और 12 टर्म्स ले जाएंगे, राइट। सो एन इक्वल टू 12, और गलती से 13 मत कर देना, ये सिली मिस्टेक थोड़ा हो जाता है, बट फाइन, इट्स फाइन। सो इसका आंसर जो है 12 हो जाएगा। मतलब मेरे को तो लगता है, मैंने अभी आंसर की जो मैंने निकाला था वो मेरे पास अभी नहीं है, बट प्लीज़ प्लीज़ अगर कोई कैलकुलेशन में वगैरह कुछ एरर वगैरह हुआ, वैसे होना तो नहीं चाहिए, मैं तो पॉज करके खुद से किया ये वाला, बट लेट्स सी, अगर कोई एरर हुआ तो बता देना, तो मैं वो मतलब कमेंट पिन कर दूंगा, राइट। सो so I hope this problem was clear. Of course, again, it was a really, really easy problem, and 20 minutes for such a problem is just, what can I say, baseless. However, baseless in the sense that now you already know these videos are only to introduce you to the style of thinking independently. If now if you just see any other solution, they will just say, okay, just put m equal to 0. But why put m equal to 0? Just so easily, it's a really simple question. I have a even tougher question of functional equation. Maybe next video we will cover onto that, right? So I will maybe put in the community post, and if people can answer it, let's see.
then I will also, if they can share their approaches to me, they can also do so. My email is balamehur, balamehur, uh, BALAMEAHUAR @gmail.com. If you have any good other functional equation question, or let's say, what can I say? I will post the question. If you have any good approach, then please tell me. Right. So that would be it, I guess, for today's video. I hope I didn't take too much of your time, and of course, the main motive that you learned. So I hope you did that. And of course, take as always, take care. Goodbye.